assignments on VLE and the previous assignments वो आप मुझे email कर सकते हैं जब आप उसको complete कर लें। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ लें। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों structure of a scientific research paper. Structure of a scientific research paper. So first I would like to explain you the term research. What is the term research? Is there anyone in the class who can type me in the chat box? Mazalam, as of now, do not worry about midterm. I will tell you how I will assess you in midterm, and for final exams we are still working with the management and we will come to a solution that will facilitate students. Right now our priority is to facilitate students, so we will plan something that can work out for you guys. So you guys don't have to worry about anything. अभी आप परेशान बिल्कुल ना हो कि फाइनल एग्जाम कैसे होगा, वो हम डिवाइस करेंगे प्लान। अच्छा जी बच्चों, अब मुझे बताइए व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड रिसर्च? वेरी गुड, इन्वेस्टिगेशन किसी चीज की मानो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इन्वेस्टिगेशन किसी चीज की। Studies, yes, study on a topic to collect information. Very good. Collecting facts and figures, Amna Rahman. Very good. Manur, very good. Facts nikalna, very good. Manur, very good. Excellent. Where are other students? Collecting information, yes, yes, yes. Collecting information, yes, very good, very good. Collecting information. अच्छा जी सुने, अब मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है। देखिए जी, people do research, people conduct any research when they want to find a solution to something. When they want to find a solution to something, when they want to find a solution to a problem, when something is not known, very good, Shafaraz, very good. When something is not known, people conduct research. Now let me give you an example. The best example is the current scenario. In the current scenario, COVID-19, the coronavirus has affected the entire world. And WHO, people around the world are trying hard to find a vaccine. So that means they are trying to find something which is not known, which is unknown. People do not know about the vaccine of coronavirus. So they are conducting research. They are doing again and again so that they can find a solution. So people conduct research when they want to know something which is not known. When they believe that there is a problem and there needs to be a solution, they conduct research. Very good Larry, systematic investigation. तो research का मतलब समझ में आ गया बच्चों? Is there anyone जिसको research का मतलब समझ में ना आया हो तो मैं आगे बढ़ूं? So if someone asks you what is research, you say this, that we do research when we want to find something which is not known, something which is not known, something which needs clarity or solution to a problem. ऑलराइट बच्चों, अब आप जब अपना थीसिस करेंगे ना सेमेस्टर 8 में आके, तो उस वक्त भी आप एक प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप एक प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यार अगर इस कट से मैं ये शूट करूंगा तो क्या होगा, या अगर मैं ये वाली टेक्नोलॉजी में यूज करता हूँ, VFX यूज करता हूँ। आई एम वेरी सॉरी, मुझे टेक्नोलॉजिकल टर्म या आपकी फील्ड की नहीं पता। तो इन सेमेस्टर 8 जब आप रिसर्च करेंगे ना बच्चों, आपको थीसिस लिखना होता है आपको, तो उसके अंदर एग्जैक्टली यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू कन्विंस पीपल, you have to convince your audience that there is a problem and that problem needs to be investigated. ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंटिफिक रिसर्च पेपर के वो क्या होते हैं, पार्ट्स क्या होते हैं। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है टाइटल, उसके बाद होते हैं ऑथर्स, नेम ऑफ द ऑथर्स, फिर होता है एब्स्ट्रैक्ट, फिर होता है इंट्रोडक्शन। हम बात करेंगे सिर्फ 4 पे आज, टाइटल, ऑथर्स, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन। पहला होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक रिसर्च पेपर का, एक साइंटिफिक स्टडी का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि भाई एक स्ट्रक्चर उसका होता है, उसके अंदर टाइटल होता है, उसके अंदर ऑथर का नाम होता है, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर इंट्रोडक्शन होता है, उसके अंदर लिटरेचर रिव्यू होता है, उसके अंदर मेथड्स होते हैं, उसके अंदर रिजल्ट होता है, और फिर उसके अंदर डिस्कशन होती है। ठीक है, तो चले मैं आपको एक एग्जांपल इस इन 5-6 पॉइंट्स की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भाई फर्ज करेंगे एक साइंटिस्ट है, देयर इज अ साइंटिस्ट हु इन्वेस्टिगेटेड द क्योर ऑफ कोरोना वायरस। सो वो अपने पेपर का टाइटल लगाएगा, रेमेडी ऑफ कोरोना वायरस। ऑथर वो अपना नाम बताएगा कि ये मैंने पेपर लिखा है। वो एब्स्ट्रैक्ट बताएगा, अभी आपको मैं बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। देन वो इंट्रोडक्शन की तरफ जाएगा, ही विल गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेपर। देन जिस तरीके से उसने डाटा कलेक्ट किया होगा, उस डाटा को एनालाइज करने के बाद वो रिजल्ट बताएगा।
ठीक है बच्चों, सो दीज आर दी बेसिक पार्ट्स ऑफ अ रिसर्च पेपर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, देखें जी, ये आपके सामने आ रहा है, ये देख रहे हैं आप, डू इनडायरेक्ट कोडेड करेक्टिव फीडबैक एंड टीचर्स शॉर्ट इफेक्टिव कमेंट्स इंप्रूव द राइटिंग परफॉर्मेंस एंड लर्नर्स अपटेक। You see this बच्चों, this is the title of the paper, this is the title first part, and these are the authors. This paper is written by me actually, I am the first author। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑथर, जो पहले होता है, उसके बाद जो होता है उसको सेकंड ऑथर कहते हैं, और जो लास्ट में होता है उसको लास्ट ऑथर यानी कि थर्ड ऑथर। तो दीज आर द ऑथर्स, ये ऑथर्स हैं, फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर एंड थर्ड ऑथर। और ये ऊपर सबसे पहले आता है टाइटल ऑफ द रिसर्च पेपर। जो तुम अपना थीसिस बनाओगे 8 सेमेस्टर में, तो तुम भी इस तरीके से सबसे पहले ऊपर टाइटल लगाओगे कि भाई ये टाइटल है मेरे थीसिस का सर, और ये इसका ऑथर मैं हूँ। डेफिनेटली तुमने लिखा होगा तो तुम बोलोगे कि इसका ऑथर मैं हूँ। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? कोई ऐसा स्टूडेंट, इफ देयर इज एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड प्लीज आस्क। कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में ना आया हो? आगे बढ़ूं बच्चों, प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट में, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। जी बच्चों, अब मैं आपको बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। अच्छा जी बच्चों, अब इधर आ जाइए जरा, ये जरा इसको पढ़ें, इन पॉइंट्स को पढ़ें, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। मैं दोबारा बता दूंगा अनस। अच्छा, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ आप सबको, ये सारे जो है ना वो पॉइंट्स होते हैं, जो ये सारे कंपोनेंट्स हैं एक रिसर्च पेपर के। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च पेपर, these are the components of a research article, all right? First one is title, then author, then abstract. We are going to talk about first three, and this is the example, this is the title, this is the title of the paper, all right बच्चों, and these are the authors, and this is the abstract। सही है बच्चों, समझ में आ गया? अब मैं आपको बता रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। अच्छा, पहले तो मुझे आप ये बताइए कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड आप सुनते हैं? तो व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट? व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू हियर द वर्ड? अमाद, यस बताओ बेटा क्या हुआ? अमाद बताओ, तुमने हैंड रेज किया है, व्हाट इज इट अमाद? समरी, वेरी गुड। बजील, बजील, वेरी गुड, वेरी गुड। An abstract, good, 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 very good, very good, very good preview, very good, very good। Voice isn't clear। मरियम सलाम, अपना नेट रीस्टार्ट करो बेटे, तुम अपना नेट रीस्टार्ट करो। समरी या रिलेटेड चीजें, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एनी टॉपिक मुस्लिम अब्बास, वेरी गुड। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किए वो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दे। समरी एक्सीलेंट, मिसबा एक्सीलेंट, समरी इन डेप्थ एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, abstract, yes, abstract is the summary of the entire article, abstract is the summary of the entire article। yes अन्ना, सही बोला तुमने, abstract is the summary of the entire article। अब मैं आपको बड़ी आयरॉनिक चीज बता रहा हूँ, ये सुनिएगा। abstract is the first part of the research paper, very good Larib, abstract is the first part of the research paper, abstract is the first part of the research paper, and abstract is the first part of the research paper, however it is written once the paper is completed। ये चीज समझ में आई? एब्स्ट्रैक्ट जो है वो आता तो सबसे पहला हिस्सा है, एब्स्ट्रैक्ट इज द फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट इज द फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट पार्ट of the research structure, but you can only be able to written the abstract once you have completed the paper। ये स्टेटमेंट समझ में आ गई आप लोगों को? बजीर को नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। देख रहे ये पेपर है ना, इस पेपर में सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट है। Now abstract is the summary of the entire paper। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, abstract is the summary of the entire paper। I can only write abstract once I have completed the paper, because in abstract I also have to tell about the result of the study। Can I tell the result of the study without conducting the study? Can I tell the result of the study without conducting the study? No। So it is very important to first complete the study from A to Z,
once you have completed the study from A to Z, only then you can summarize. Only then you can summarize. बच्चों समझ में आ गया? अब समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अभी भी अगर किसी के समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ सकता है. प्लीज आस्क इफ यू डोंट अंडरस्टैंड. शैल आई मूव फॉरवर्ड? अब बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, यस टाइप जरूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आ रहा है. गुड. अच्छा, इसके अलावा भी अगर आपको कंफ्यूजन है ना तो क्लास के सेशन के बाद मानूर समराइज लास्ट में होता है, पेपर पे होता है, आर्टिकल के. यस बिल्कुल, वेरी राइट मानूर. इसके बाद भी अगर आपको कोई समझना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा या मैं यहाँ पे एक और सेशन बना दूँ. ठीक है बच्चों, आप इसको जरा पढ़ते हैं. ये कुछ यहाँ पे अपनी टेक्निकल चीजें बता रहा है. देखें, एन एब्स्ट्रैक्ट और समरी इज पब्लिश्ड टुगेदर विद अ रिसर्च आर्टिकल गिविंग द रीडर a preview of what's to come. शाजिया प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. आप इसको पढ़ लीजिएगा इन चीजों को. आखिरी पॉइंट में सिर्फ आपको बता रहा हूँ, your abstract should be one paragraph, 100 to 250 words. Abstract is the summary and it should not be more than 250 words, and your abstract summarizes the entire research paper. So मैं slides नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आप जो 3 पॉइंट्स हैं ये आप बाद में पढ़ लीजिएगा अपने लिए. कोई मसला नहीं. सैयद ऐसा अगर तुमने अभी ज्वाइन किया कोई इशू नहीं है बेटा, मैं तुम्हें बाद में क्लास के बाद बता दूंगा आर्टिकल, कोई इशू नहीं. सो समरी, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसर्च पेपर, सो यू से दिस दैट इट्स अ समरी. It's a summary of the entire research paper. It's the summary of the entire research paper. It summarizes the entire research paper. It gives you an idea about the introduction. It gives you the idea about the method, and it gives you the idea about the result of the study. महमूद समी प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स. अच्छा, अब मुझे बताइए आप लोग कि एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया आप लोगों को? एब्स्ट्रैक्ट समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? माशाल्लाह वी हैव 41 पार्टिसिपेंट्स. माशाल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी. आई एम वेरी हैप्पी. अच्छा बच्चों, अब ये मैं आप लोगों को एक आइडिया बता रहा हूँ. सिर्फ एक आइडिया के लिए एक एब्स्ट्रैक्ट दिया. ये जो पेपर है ना आपके सामने जो एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है, ये पेपर 9000 वर्ड का है. दिस पेपर इज ऑफ 9000 वर्ड्स. बट आप इसका एब्स्ट्रैक्ट देख रहे हैं कितना छोटा सा लिखा हुआ है मैंने, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट होता ही इतना छोटा सा है. अब मैं आपको भले से आपको समझ में ना आए क्योंकि इसके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, डू नॉट गेट वरी. आई वांट यू टू टेक 2 minutes एंड जस्ट रीड दिस एब्स्ट्रैक्ट वेरी क्विकली. ऑल ऑफ यू शुड रीड दिस एब्स्ट्रैक्ट वेरी क्विकली. Read this abstract very quickly बच्चों. ठीक है बच्चों, अब देखें कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ. कुछ चीज़ें मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ. सबसे पहले तो आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में ये बताते हैं कि भाई इस स्टडी का पर्पस क्या है. अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना मैं आपको एंड में सिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ जनरल आइडिया दे रहा हूँ. आपके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद रीडर्स को ये पता चल जाए कि स्टडी का आइडिया क्या है. ठीक है, तो मैं बताता हूँ भाई द करंट स्टडी एम्स टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ दिस एंड दैट, और फिर इसके अंदर रिजल्ट्स होते हैं. तो आप ये देखें एंड में मैंने रिजल्ट भी बताया. यहाँ से अगर आप मोर ओवर से पढ़ें तो इसके अंदर रिजल्ट भी आ रहा है, ये द रिजल्ट. ठीक है बच्चों, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं ना 90, ये N45, ICCF, ये सब मेथोडोलॉजी होती है. ये सब मेथोडोलॉजी होती है, ये मैं आपको बताऊंगा. तो यानी कि द पर्पस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज व्हेन यू रीड एब्स्ट्रैक्ट यू विल हैव एन आइडिया अबाउट द स्टडी. आपको ये पता चल रहा है यार ये स्टडी किस बारे में. अनस ने बहुत अच्छा बोला कि राइटिंग किस बारे में. यू विल हैव एन आइडिया अबाउट द स्टडी इटसेल्फ, ये स्टडी किस बारे में है. ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ूं?
आगे बढ़ूं बच्चों? अच्छा जी, लिखना, आई टेल यू अगेन दैट आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू राइट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट लिखने के कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। अभी मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ, मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। ये रहा बच्चों। अच्छा जी, अब जरा इसको समझना है आपने। अब आपने जरा इसको समझना है। देखिए आपने, अगेन ये जो मैंने चीजें लिखी है ना इंट्रोडक्शन के अंदर, दैट्स यू कैन रीड इट आफ्टरवर्ड्स, आप बाद में पढ़ सकते हैं। देखें हमने ये कर लिया, मैंने आपको टाइटल बता दिया, ऑथर्स बता दिए, एब्स्ट्रैक्ट बता दिया क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना नहीं बताया है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रोडक्शन पेपर की क्या होती है। जो रिसर्च तुम जब अपना थीसिस लिखोगे ना, तो उसकी इंट्रोडक्शन क्या होती है, अब ये बता रहा हूँ। देखो बच्चों, when you write, the introduction of any paper focuses around four things: background, the problem, what has been done, what needs to be done. I repeat, background, context, the problem, मसला क्या है, इस मसले को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हुआ है, अब क्या करने की जरूरत है। कितनी चीजें होती हैं? बैकग्राउंड, द कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, द प्रॉब्लम, क्या किया था लोगों ने, व्हाट हैज बीन डन एंड व्हाट नीड्स टू बी डन। ठीक है बच्चों? अच्छा बस आप 1 मिनट लीजिए और जल्दी से ये लाइंस जो मैंने ऊपर लिखी है ना, जरा इसको पढ़ें आप। प्लीज रीड दीज लाइंस। अच्छा जी बच्चों, नो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया आप सबने? हैव यू ऑल रेड? आप सबने पढ़ लिया? सबने पढ़ लिया? चलिए जरा मैं आपकी चैट पढ़ूँ, आप लोग क्या कह रहे हैं। इट बिकम्स मोर इजियर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा जी, गुड 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 गुड। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जी, ओके शाफराज, आई अंडरस्टैंड। अब जरा इसको समझते हैं हम, इसको ये है क्या। देखिए जी, द इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर स्टडी। द इंट्रोडक्शन, रिमेंबर ऐसे इज इंट्रोडक्शन, ऐसे का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। The introduction part of any essay is very important. Similarly, when you write a research article, it is very important to establish the background. So let's suppose if you are conducting a study in Pakistan, so you need to first tell the readers, your readers who will read your article, you will have to tell them the context of your study. That my study is being conducted in Pakistan, and this is the context in Pakistan. My study is conducted in Pakistan, and this is the context of Pakistan. अच्छा जी, उसके अलावा उसके अलावा उसके अलावा बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, एक ये अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं इस वक्त क्लास में हूँ, प्लीज़ जल्दी से बोलें आप, या तो मैं आपसे थोड़ी देर में बात कर लूँ। मैं आपको 2:30 के बाद कॉल करता हूँ मैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू। अच्छा जी बच्चों, so the introduction establishes, in the introductory part you have to convince your readers that this study is important. All right, this study is important and this is the context of the study. So for example, if I'm conducting a study on suicide, that why people around the world commit suicide, so it is very important for me to first tell the background. That means about Pakistan, what is the suicide rate in Pakistan, what are people up to in Pakistan, why do they commit, something like this, these type of things. And then the problem, what is the problem that I am going to investigate, and then इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने क्या किया है, और what needs to be done, अब क्या क्या करने की जरूरत है। ठीक है, सो द इंट्रोडक्शन लीड्स द रीडर फ्रॉम अ जनरल सब्जेक्ट एरिया टू अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंक्वायरी। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको थीसिस लिखते वक्त एक फनल अप्रोच बताई थी, इफ यू रिमेंबर द फनल अप्रोच, और वो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी थी मूवी की,
जिसके अंदर वो एक गाइड बना हुआ था, टूर गाइड बना हुआ था, मैंने एक फनल बना के भी आपको दिखाया था, यस 3 स्टेप फनल। तो ये देखें वही बात कर रहा है, ये कह रहा है द इंट्रोडक्शन लीड्स द रीडर फ्रॉम अ जनरल सब्जेक्ट टू अ पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल आप ये बता सकते हैं कि भाई दुनिया के अंदर जो है वो बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं, लोग डिप्रेशन का शिकार हैं और डिप्रेशन की वजह से लोग सुसाइड पे आ जाते हैं, तो तुम कैसे ऊपर से जनरली लेकर आए कि दुनिया के अंदर इतने मसले मसाइल हैं, लोग डिप्रेशन के शिकार हैं और फिर लोग जो है वो सुसाइड करते हैं। सो यू हैव टू generally start the introduction and then you bring to that specific point। समझ में आ गया ये बच्चों, ये चीज समझ में आई बच्चों, ये चीज समझ में आ गई? अच्छा, अब बाकी जो सारी चीजें हैं ना, ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि ये होता क्या है रिसर्च प्रॉब्लम। अब इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों को अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बतानी होती है। अच्छा जी बच्चों, अच्छा क्योंकि दूसरी स्लाइड पे मैं जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट दीस पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ रजिस्टर, कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, द प्रॉब्लम, व्हाट हैज बीन डन, व्हाट नीड्स टू बी डन। जरा इसको लिख लीजिए सारे आप लोग, प्लीज राइट दीस पॉइंट ऑन अ रजिस्टर। एनीवन हु हैज नॉट रिटन दीस पॉइंट्स ऑन अ रजिस्टर प्लीज राइट। Anyone who has not written these points, please write it on the register. Anas has raised his hand. Yes, Anas, yes, बोलो बोलो, टाइप करो। अच्छा, जब आप लोग ये टाइप बॉक्स पे आते हैं ना आप लोग, तो प्लीज ऑल पैनलिस्ट टू ऑल अटेंडीज किया करें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आप लोग, क्योंकि कुछ लोग प्राइवेट पे मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं, फिर मैं क्लास डिस्ट्रैक्ट होती है, तो प्लीज यहाँ पे टाइप कर दिया करें। अच्छा जी बच्चों, लिख लिया? अब इन्हीं पॉइंट्स की, इन 4 पॉइंट्स की मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ पैराग्राफ के अंदर कि हाउ आई हैव रिटन दीज 4 इन अ पैराग्राफ। ठीक है बच्चों, रिमेंबर, आई रिपीट, introduction is the first part is the abstract. After abstract you have to write the introduction of the research paper. Introduction is very important. In introduction you have to start generally and then you bring to a point which is your area, which is your thesis, and then you need to tell the audience the problem, what is the problem. Remember my dear students, देखा आपके 8th semester में भी ये चीज काम आई। Remember my dear students that a strong thesis must have a worthy problem। एक वर्दी प्रॉब्लम होनी चाहिए, एक वर्दी प्रॉब्लम होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अब आप बाहर जाएं और आप जाके कहते हैं कि यार सर आई वांट टू इन्वेस्टिगेट कि बच्चों को ना बुखार क्यों चढ़ता है, या सर आई वांट टू इन्वेस्टिगेट कि बच्चों को पैनाडोल से बुखार उतर जाता है या नहीं उतर जाता है। क्या जो दुनिया है, जो रीडरशिप है, वो आपके पेपर पढ़ने में इंटरेस्टेड होगी? वुड द पीपल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग दिस? Definitely no, they would not be interested in reading this. Another example, you write a paper in which you give general idea to the public that why this COVID-19 या how this COVID-19 has been initiated। लोग पढ़ेंगे तुम्हारा पेपर? नहीं पढ़ेंगे, मुझे ये बताओ। अगर तुम कोरोना वायरस पे एक पेपर लिख देते हो, एग्जैक्टली, शाबाश बच्चों, तो दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, that if there are thousands of studies have been conducted before and you are conducting that study again, so what is the point of conducting research bhai? There is no point of conducting research, there is no। अच्छा, एक जल्दी से एक टर्म लिखिए अपने रजिस्टर के पेज पे, एक चीज लिखें, एडिंग नॉलेज टू द लिटरेचर। जल्दी से लिखिए, एडिंग नॉलेज टू द लिटरेचर, एडिंग नॉलेज टू द लिटरेचर। एडिंग नॉलेज टू द लिटरेचर। अच्छा जी, अब ये होता क्या है, देखें जी, adding knowledge to the literature means that you do something new and you add that knowledge to the existing literature। for example, बीमारियां, आपने एक नई स्टडी कंडक्ट करी, कोविड-19 का इलाज, आपने उस नॉलेज के अंदर उस चीज को आपने ऐड कर दिया। that means you have added something new
टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्ट, जैसे फर्ज करें पूल है, स्विमिंग पूल है, उसके अंदर पानी था, आप एक नई कोई चीज लेकर आए, पानी लेकर आए, आपने उसके अंदर डाल दिया, तो दैट मीन्स यू आर एडिंग एग्जिस्टिंग, यू आर एडिंग समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज, यू आर एडिंग समथिंग टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज। रिसर्च हुई भी, अब मैं आपको थोड़ा इंग्लिश के हिसाब से समझाता हूँ, रिसर्च हुई भी कि बच्चों की भाई राइटिंग क्यों वीक है, बच्चों की राइटिंग स्किल्स क्यों वीक है। तो एक नई रिसर्च हुई कि बच्चों की राइटिंग स्किल्स वीक इस वजह से है क्योंकि वो एंजाइटी का शिकार होते हैं। स्टूडेंट्स आर एंशियस, स्टूडेंट्स आर अफेक्टेड फ्रॉम राइटिंग एंजाइटी। तो आपने ये रिसर्च नई कंडक्ट करके एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर ऐड कर दिया, तो इसको कहते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो आपकी रिसर्च, योर रिसर्च इज वर्दी, योर रिसर्च विल ओनली बी वर्दी when you add something to the existing knowledge, my dear students. If you conduct a research for which people have already conducted so many studies, there are so many studies on the internet available, what's new about your study? Why would people read your study? What is it new that you have done? So a good researcher always ask these questions, and before targeting a problem, he thinks that he asks himself that is my problem worthy of solving? भाई क्या मेरी प्रॉब्लम से लोगों को फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे लोगों को फायदा होने से मतलब, जैसे मैं एक इंग्लिश का टीचर हूँ, अब मैंने अगर एक रिसर्च करी इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से, तो लोगों से फायदा का मतलब मेरी कम्युनिटी के अंदर, मैं पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कोविड-19 एक ऐसा इशू है, वो एक पब्लिक इशू है, दुनिया का इशू है, ग्लोबल इशू है। लेकिन तुम मीडिया साइंस के स्टूडेंट हो सारे, तो तुम अगर कोई एक स्टडी कंडक्ट कर रहे हो तो तुम ये चेक करोगे कि यार मेरी कम्युनिटी में, यानी कि मेरी मीडिया साइंस के लोगों में इसका फायदा है या नहीं है। मुझे तुम्हारी स्टडी से कोई गर्ज नहीं, लेकिन ये तुम्हारी स्टडी फिर भी वैलिड है बिकॉज यू आर गिविंग बेनिफिट्स टू द पीपल ऑफ योर कम्युनिटी। बच्चों, ये एडिंग लिटरेचर वाली बात समझ में आ गई? एडिंग लिटरेचर वाली बात समझ में आ गई बच्चों? प्लीज ऑल ऑफ यू, जितने लोग हैं इस वक्त सब टाइप करें यस। आई हैव 41 स्टूडेंट्स, प्लीज टाइप यस, प्लीज टाइप यस। अब मैं सबके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, उजैर, जैनब, मुस्लिम, माज, हुनैन, मरियम, ज़ेबुन्निसा, हानिया, रिमशा, मोहम्मद नबील, मुइज़, हसान शेख, उज़ैर जावेद, फातिमा, अम्माद, मानूर, हदीका। गुड, वेरी गुड। उमना, यस, वेरी गुड। चलिए जी बच्चों, अब मैं आपको ये जो चार चीज़ें मैंने आपको लिखवाई थी ना, कॉन्टेक्स्ट, द प्रॉब्लम, व्हाट हैज़ बीन डन, व्हाट नीड्स टू बी डन, आई एम गोइंग टू शो यू दिस इन अ प्रॉब्लम। एक मैं आपको स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, आपने आइडेंटिफाई करना है कि सर ये चार पॉइंट्स इसके अंदर किधर है। सो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन डू दिस। ये रहा। अब ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ें। स्क्रीन दिख रही है सबको? सबको ये इंट्रोडक्शन दिख रहा है? चलिए ज़रा इस इंट्रोडक्शन को पढ़ें और ज़रा सुकून से पढ़िएगा, क्योंकि ये अब इम्पोर्टेंट चीज़ है। 5 मिनट लें, 5 मिनट से ज़्यादा भले से ले लें, इसको पढ़ें और आइडेंटिफाई करें कि मैंने कहाँ पे बताया है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे मैंने बताई है, मैंने ये कहाँ पे बताया कि भाई ये हो चुका है लेकिन ये होना बाकी है। अम्माद 8 मिनट क्या होता है ये? 8 मिनट क्या? अच्छा, 5 मिनट कम है, हाँ कोई इशू नहीं बेटा, कोई इशू नहीं, 5 मिनट तुम बस पढ़ लो उसको, तुम लोग समझ लो। अब जैसे कि मैंने कहा, मेरी सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि तुम्हें समझ में आ जाए। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये बच्चों कि यही चीज़ें तुम अपने थीसिस में लिखोगे, ये मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, तुम्हारे थीसिस में काम आएंगी ये चीज़ें। पढ़ लो फिर मुझे बताओ कि सर ये पॉइंट यहाँ पर है, ये यहाँ पर है।
बार बार पढ़ें। आई एम विद यू, मैं यहीं पर हूँ, ये मत समझिएगा कि सर पता नहीं कहाँ चले गए। आई एम विद यू ऑल द टाइम, आप पढ़ लें बस, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पार्टिसिपेंट्स 37 क्यों हो गए? सेकंड लाइन प्रॉब्लम। वेरी गुड। जैनब मुझे आंसर सारे बता रही है। अच्छा, मोहम्मद शमी, किसी ने कहा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको बता दूंगा, परेशान ना हो। चलिए जी बच्चों, अब जरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ और अब आप लोग देखिएगा। पहले मैंने बात करी जनरल स्टेटमेंट, एक मैंने दी, एक बैकग्राउंड दिया मैंने कि भाई राइटिंग स्किल्स ऑफ द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी लर्नर्स आर ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी। इन्फीरियर का मतलब कम, किसी चीज़ की क्वालिटी अगर सही ना हो उसको हम इन्फीरियर कहते हैं। और ये जो मैंने ब्रैकेट में लगाया है ना, दार 2015, इसको हम कहते हैं रेफरेंस। ये मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस कैसे देते हैं। अब मैंने आगे बताया कि भाई सिंस राइटिंग इज नॉट द फर्स्ट, सिंस इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, इंग्लिश हमारी पहली लैंग्वेज नहीं है। मोस्ट ऑफ अस हैव उर्दू एज आर फर्स्ट लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश हमारी पहली लैंग्वेज नहीं है, पहली लैंग्वेज हमारी उर्दू है। तो मैं कहता हूँ फिर कि भाई सिंस इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, सब मैं कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। सिंस इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल लर्निंग दिस लैंग्वेज, पर्टिकुलरली राइटिंग स्किल्स। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता प्रॉब्लम की तरफ लेकर आ रहा हूँ कि बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स है ना वो वीक है। बच्चों की राइटिंग स्किल्स आ रही है? मेरी आवाज़ आप सबको आ रही है क्लियर? मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? गुड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चीज़ें। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। देखें जी, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया राइटिंग स्किल्स ऑफ द पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी लर्नर्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। मैंने ये रेफरेंस दे दिया दार का, दार 2015 का। फिर मैंने बताया कि भाई सिंस इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज व्हाइल लर्निंग दिस लैंग्वेज, पर्टिकुलरली राइटिंग। मेरा फोकस जो था वो राइटिंग पे था। फिर मैं कहता हूँ कि भाई अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर अनेबल टू राइट इफेक्टिव एंड कोहेरेंट टेक्स्ट। ये प्रॉब्लम है भाई, ये प्रॉब्लम है नहीं क्लास के अंदर। मैं सिर्फ आपकी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ। पीपल, स्टूडेंट्स कैन नॉट राइट कोहेरेंट टेक्स्ट। A large number of students are unable to write effective and coherent text in English at university level. बहुत सारे बच्चे यूनिवर्सिटी लेवल पे कोहेरेंट टेक्स्ट नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। a number of studies have been conducted. What has been done? A number of studies have been conducted to prove the declining writing skills of the Pakistani university learners. बहुत सारी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने बताया कि भाई बच्चों की राइटिंग स्किल्स क्यों खराब हैं। इन स्टडीज ने बताया दीज स्टडीज हैव अनवील्ड मतलब बताना, खोलना किसी चीज को, दैट लैक ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग that lack of teachers training and inadequate support provided to the learners in English language class are few of the major reasons of the declining skills of the learners. इन स्टडीज ने हमें ये बताया कि भाई ये रीजंस हैं जिसकी वजह से बच्चों की इंग्लिश जो है वीक है। अब what needs to be done, what has not been done, written corrective feedback WCF given by the teachers on students' writing has proven to help EFL learners improve their writing accuracy. ये बात बताते हैं लोग कि टीचर जब फीडबैक देता है बच्चे को राइटिंग के ऊपर तो उनकी राइटिंग इंप्रूव होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर, however, there are very few studies in the Pakistani context which have tested the efficacy मतलब effectiveness of WCF in helping learners improve writing accuracy. तो यहाँ से मैं दे रहा हूँ what needs to be done, however से मैं बता रहा हूँ कि भाई इसकी ज़रूरत है, what needs to be done.
The current study is therefore conducted to probe, to investigate how well corrective feedback can help Pakistani EFL learners improve the writing skills of the learners. अब मुझे बताओ मेरे चैंपियंस, किसको समझ नहीं आया? अब मुझे बताओ मेरे शहजादों, किसको समझ नहीं आया? Is there anyone in the class जिसको समझ में ना आया? Very good, Bajil. I'm very happy for all of you. Good. Essen says good. Maz Alam says very good. Got Larip says, Rimsha says, Zibin Musa says good, 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 very good. Understand, sir. Clear, sir. Got it. Bajia, yes. Hunan Shahid, yes. Clear. Good. I'm very happy. अच्छा बच्चों, अब जैसे मैंने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी है ना, आई हैव रिटन माई प्रॉब्लम स्टेटमेंट कीपिंग इन माइंड माई बैकग्राउंड. मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश का है. 3 पॉइंट्स क्लियर कर दें. पॉइंट नंबर 3 क्या था? पॉइंट नंबर 3 था व्हाट हैज़ बीन डन. अच्छा मरियम, व्हाट हैज़ बीन डन का मतलब तुम्हें ये बताना है कि भाई क्या क्या हो चुका है. तो मैंने यहाँ बताया ना कि नंबर ऑफ स्टडीज, देखो ये सब हो चुका है. A number of studies have been conducted to probe the declining writing skills. ये हो चुका है, यानी कि what has been done ये हो चुका है, इसकी बात कर रहा हूँ. समझ में आ गया मरियम? कोई मसला नहीं काशान, मैं रिपीट कर दूंगा अभी. मरियम तुम्हें समझ में आया? गुड, मरियम को समझ में आ गया. अच्छा जी बच्चों, अब मैं कर दूंगा रिपीट काशान, डोंट वरी. मुझे ज़रा एक चीज़ बस कंप्लीट करने दो. अब बच्चों ये जो मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बताई है ना यहाँ पे, ये मैंने तुम लोगों को बताई है अपनी फील्ड के हिसाब से. दैट मीन्स आई हैव एक्सप्लेन यू दिस फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, माई फील्ड. When you write your own problem statement, inshallah, when you come in 8th semester, when you write your thesis, inshallah, so at that time you would formulate your own problem statement, keeping in mind your skill, keeping in mind your field. So you would have to follow these points. Trust me, my dear students, if you follow these points, you will make problem statements very quickly. वेरी क्विकली यू विल मेक प्रॉब्लम स्टेटमेंट. आप बड़ी आसानी से प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर जाएंगे. बस आपने पॉइंट ध्यान में रखने के ये है, ये है, ये है, ये है. ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? आ गया समझ में मेरे बच्चों? गुड. अच्छा ज़रा मुझे ये बताओ कि तुम लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम लोग घर में? क्या करते हो? और रीडिंग कर रहे हो? ये अच्छा टाइम है बुक्स रीड करने का. बुक्स रीड कर लो. किसी को कोई बुक चाहिए तो वो बुक ले सकता है. अब बुक्स में मैं तुम लोगों को बुक्स दे सकता हूँ. रीडिंग वेरी गुड. लारेब कहती है सर ना पूछें, नींद पूरा दिन. चलें, अच्छा है, नींद पूरी कर लें आप लोग. बच्चों ने कुछ दुआ करें बस. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है उज़ैर जावेद ने. शाफराज कहता है सर ये वर्स्ट डेज हैं. लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ. कल एक पिक्चर शेयर होती है, किसी एक ग्रुप पे एक पिक्चर शेयर होती है जिसमें वो टाइटैनिक की शिप दिखाई है कि शिप डूब रही है, लेकिन इस तरफ टीचर्स खड़े हैं, वो वायलिन बजा रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, हम सारे जो हैं वो सारा दिन काम कर रहे हैं. हम सारे टीचर्स सारा दिन काम कर रहे हैं. हम ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि यार ये हम तो हैं घर पे, कहने को तो हम घर पर हैं, लेकिन हम सारा दिन काम कर रहे होते हैं. हम सारा दिन काम कर रहे होते हैं, लेक्चर किसी तरीके से बना रहे होते हैं. अब मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं. ये जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की इंट्रोडक्शन दी है ना, ये मैंने कल लिखी आप लोगों के लिए ये सोच के कि मुझे आप लोगों को इंटरनेट पे पढ़ाना है, तो मैं इस तरीके से इसको इतना आसान बनाऊंगा आपके समझ में आ जाए. तो आई स्पेंड 45 मिनट्स ऑन इट. वरना मैं अगर यूनिवर्सिटी में होता तो शायद मैं आपको किसी और तरीके से पढ़ा देता. तो मैंने ये सोचा कि नहीं यार, ये मैं इनके लिए लिखूँ ये, ताकि इनको ये चीज़ समझ में आ जाए. तो वी एज ए टीचर हम तो भाई सारा दिन काम कर रहे होते हैं. जो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिल जाता है, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, तो मैं थोड़ी सी गेमिंग कर लेता हूँ माइंड फ्रेश करने के लिए. तो हम सबको इस चीज़ का रियलाइज़ करना चाहिए बेटा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम है. ये एक बहुत बड़ा ऐसा टाइम है कि मुझे अपनी फैमिली की भी फिक्र है. मेरे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे उनकी फिक्र है. तौबा का वक्त है, सही कहती है. थैंक यू मुस्कान. हम सब बस अपना वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू आवर जॉब्स. मैं 15 दिन से खुद अपने घर से बाहर नहीं निकला हूँ. मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब घर से बाहर ना निकलें. अल्लाह से दुआ करें कि टाइम सही हो जाए. और हम लोग फिर ये भी सोच रहे हैं बच्चों के आप लोगों का सेमेस्टर ज़ाया ना हो किसी तरीके से. हम ये सिर्फ सोच रहे हैं सारे लोग कि यार बच्चों का सेमेस्टर ज़ाया ना हो, और इनको
इनको किसी तरीके से कॉन्सेप्ट भी मिल जाए, स्टूडेंट्स गेट द कॉन्सेप्ट एज वेल, इनको चीज़ें भी समझ में आ रही है। तो हम बस ये ट्राई करना, और इस जब जब भी कुछ चीज़ चेंज होता है ना बच्चों, तो उसके अंदर थोड़ी सी आते हैं ग्लिचेस, आते हैं, हैसल आता है। अभी बच्चे का मेरे पास टेक्स्ट आया फेसबुक पे कि सर मैं कनेक्ट नहीं कर पाया। तो मैंने उसको बोला तुम क्यों परेशान हो रहे हो, तुम नहीं कनेक्ट कर पाए, क्लास के बाद मैं तुमसे पर्सनली बात करूँगा। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं जिनको किसी तरीके से नहीं पता चल पाया कि हमारी क्लास है, अच्छा मैं मैसेजेस आप सबके पढ़े जा रहा हूँ, बार बार सबके मैं पढ़ रहा हूँ कि आज क्लास है, या समझ नहीं आया सर, कनेक्टिविटी इशू थी। देखिए ये वो इश्यूज हैं बच्चों जो होंगे हमारे साथ, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे सबके इंटरनेट के इश्यूज हैं। अब जो हम अपने एंड से कर सकते हैं वो हम करें। जैसे मैंने इस वक्त क्या किया, मैंने अपने घर वालों का जो है वो इंटरनेट बंद करवा दिया। मैंने कहा भाई आप इस वक्त कोई इंटरनेट यूज़ नहीं करेगा क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ। तो जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हम करें। हाँ ठीक है, अगर क्लास के टाइम पे आपकी लाइट नहीं है, आप मुझे टेक्स्ट करके बोल देंगे सर मेरी लाइट नहीं थी, मैं क्लास में नहीं आया इस वजह से, तो सर अब मेरे लेसन का क्या होगा। तो मैं एक और सेशन क्रिएट कर दूंगा बाद में, कोई किसी और टाइम पे मैं एक और सेशन क्रिएट कर दूंगा जिससे मैं आप लोगों को सबको उस टाइम पे ले लूँगा। अच्छा जी बच्चों, आज का तो जैसे हमारा ये टॉपिक था ये मैंने आपको करवा दिया। हो सकता है आगे चल के हमारे एक ऐसे लेसन हों जो 1 घंटे में ना हो पाए, जो 1 घंटे में ना हो पाएँ, तो उसके लिए जैसी क्लास खत्म होगी फिर मैं एक और सेशन क्रिएट कर दूँगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को बाद में दे दूँगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आप लोगों को बाद में लिंक दे दूँगा। उमर कहता है सर द क्लास वाज वेरी स्मूथ फॉर मी व्हिच इज सरप्राइजिंग, क्लास रिकॉर्डेड है पूरी सर। अब बेटा मुझे इसका नहीं पता रिकॉर्डेड है नहीं है, अगर रिकॉर्डेड है तो दैट्स ओके। तो बस आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। वो कहता है ना आप लोगों ने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बस आप लोगों ने अल्लाह अल्लाह इस वक्त से हम सबको नहीं करना। और मेरा यकीन है बेटा अभी रमज़ान शुरू होने वाला है, मुझे एक अंदर से फील आ रहा है कि रमज़ान से पहले तो ये वैसे सब खत्म हो जाएगा। सर हो रही है अब घबराहट। नहीं, रमज़ान से पहले सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह रमज़ान से पहले। अच्छा जी बच्चों, अब मुझे ये बताइए कि यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई, यहाँ तक समझ में आया, किसी का कोई इशू तो नहीं है। अच्छा जी, अब मैं ज़रा दोबारा आप लोगों को एक रिपीट करवा दूँ चीज़, यहाँ से लेके चलता हूँ मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ आप लोगों को। देखिए हमने स्टार्ट किया, अल्लाह के हुक्म से हमने स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च पेपर। तो अगर आपसे कोई पूछे साइंटिफिक रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि भाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ साइंटिफिक रिसर्च पेपर इज टाइटल, ऑथर्स, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। ये मैं बताऊंगा क्या होता है। मेथड्स मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो आपके डिफरेंट होंगे। रिजल्ट्स, डिस्कशन। तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च पेपर। ये रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है बच्चों, ये होता है रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर। इसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। आप बता सकते हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट इज द समरी ऑफ द एंटायर रिसर्च पेपर एंड इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिसर्च पेपर, बट एब्स्ट्रैक्ट कैन ओनली बी रिटन वंस द एंटायर पेपर इज कंप्लीटेड। वंस द पेपर इज फिनिश्ड you can once the paper is finished you can only then write the abstract। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं आप एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद जो है वो आप एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद अच्छा स्ट्रक्चर उमर कहता है सर रिपीट कर दें स्ट्रक्चर। बेटा स्ट्रक्चर ये है उमर, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आप लोग, दिस इज द स्ट्रक्चर, जरा एक बार और देख लें इसको। प्लीज सारे देख लें इसको एक बार। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के बाद एब्स्ट्रैक्ट आपको पता है क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा आप अपने थीसिस में भी लिखेंगे एब्स्ट्रैक्ट, ये आप याद रखें, प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट यू विल राइट द एब्स्ट्रैक्ट इन योर थीसिस एज वेल। आप बच्चों से कह सकते हो कि यार आप कोई आपसे पूछे तो आप कह सकते हो भाई एब्स्ट्रैक्ट इज द समरी ऑफ द एंटायर रिसर्च पेपर। ऐसे कोविड-19 पे आएगा, माज़ालम कोविड-19 के बारे में हमें खुद इतना नहीं पता तो बच्चे ऐसे क्या लिखेंगे कोविड-19 पे। ऐसे कोविड-19 पे नहीं आएगा, ऐसे कोविड-19 पे नहीं आएगा। कोविड-19 का तो बस अब नाम ही ना ले आप लोग यार, नफरत हो गई है इस नाम से यार, बस ये बस खत्म ही हो जाए जल्दी से। तो कोई ऐसे वैसे अभी कोई ऐसे वैसे नहीं आ रहा यार, कोई ऐसे वैसे नहीं आ रहा, ये माज ऐसे ही कह रहा है यार, अभी कोई ऐसे नहीं आ रहा।
कोई भी ऐसे नहीं आ रहा है अभी। अच्छा जी, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट के बाद मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे दी थी एब्स्ट्रैक्ट की ये। उसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि भाई इंट्रोडक्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड, और ये स्लाइड्स अपलोडेड है बिल्कुल शाहफराज, ये VLE पे स्लाइड्स अपलोडेड हैं। VLE पे स्लाइड्स अपलोडेड है, उसकी आपने फिक्र नहीं करनी है, VLE पे स्लाइड्स अपलोडेड हैं। और अच्छा जी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये, फिर मैंने आपको इंट्रोडक्शन का बता दिया कि इंट्रोडक्शन में चीज़ें होनी चाहिए, मैंने आपको इसकी एग्जांपल बता दी। अच्छा, अब बस एक चीज़ है, रिव्यू ऑफ, अब एक हेडिंग लगाइए लिटरेचर रिव्यू, एक हेडिंग लगाइए रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। अच्छा, अब ये क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जरा बस इसको समझ लें कि लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, फिर हमारी आज की क्लास खत्म। लिटरेचर रिव्यू, आपके दिमाग में क्या आता है, व्हाट कम्स टू योर माइंड? वेरी गुड मानूर, मानूर इज अ चैंपियन। जो पहले रिसर्च अगेन है उनको रिव्यू करना। जी बच्चों, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर रिसर्च आर्टिकल। लिटरेचर रिव्यू इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द रिसर्च आर्टिकल। It's the second chapter of the research article. In literature review, you actually review all the related studies related to your problem. You review all the related studies related to your problem. देखिए बच्चों, हम कोई ऐसी स्टडी तो नहीं कर सकते ना जो कभी दुनिया में हुई ना हो, जो कभी भी ना हुई हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। So in literature review, we tell the audience that भाई these are the studies that have been conducted. ये स्टडीज हुई थी, लेकिन इन स्टडीज में ये लिमिटेशंस थी, इन स्टडीज में ये मसले थे, इन स्टडीज ने ये नहीं किया था जो मैं करने जा रहा हूँ। So in review of the related literature, you review all the studies related to your topic, and then you review all the studies related to your topic, and then you put them together in chapter number 2. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें भाई, एक यूएस के अंदर स्टडी हुई कि बच्चों की राइटिंग इस वजह से खराब है क्योंकि उनको एंजाइटी होती है। तो मैं लिख सकता हूँ अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर कि भाई जॉन, लेट्स सपोज दैट दिस स्टडी हैज बीन कंडक्टेड बाय जॉन, तो मैं कह सकता हूँ उनको कि भाई in literature review, John conducted a study in 2018 to find out the causes of declining writing skills of the students. John, the result of the study revealed that writing anxiety is the primary cause of poor writing skills among the students. इस तरीके से मैंने कर दिया। तो दो चीज़ों पे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, इसको लिख लीजिए ज़रा। दो चीज़ों पे हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, एक होता है एम्पिरिकल और एक होता है थ्योरेटिकल। इसको लिख लीजिए, दो चीजें होती हैं, एम्पिरिकल और थ्योरेटिकल। मैं लिख भी देता हूँ, एम्पिरिकल एम्पिरिकल एंड थ्योरेटिकल, एम्पिरिकल एंड थ्योरेटिकल। अच्छा, अब पहले मैं एम्पिरिकल समझा देता हूँ तुम्हें। एम्पिरिकल क्या होता है? एम्पिरिकल वो तमाम स्टडीज, तो उन तमाम स्टडीज को कंडक्ट करते हो और तुम ये बताते हो कि भाई इसने स्टडी कंडक्ट की थी, इसका ये रिजल्ट आया था, इसके ये पार्टिसिपेंट्स थे, इसको कहते हैं एम्पिरिकल स्टडीज। जैसे मैंने भी तुम्हें जॉन की एग्जांपल दी, इस तरीके से मैं चलो तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करो, पाकिस्तान में किसी ने स्टडी कंडक्ट की, अहमद conducted a study to find out the leading cause of suicide in Pakistan. The study revealed that the study conducted that depression is one of the biggest causes of suicide in Pakistan. इस तरीके से जो हम स्टडीज को बता रहे होते हैं कि इस स्टडी का ये रिजल्ट था, इस बंदे ने स्टडी कंडक्ट की थी, इन लोगों पे स्टडी कंडक्ट की थी, उसको हम कहते हैं